Good morning, students. So today our topic is thermodynamical equilibrium. The two systems or three systems are said to be in thermal equilibrium if both are having the same temperature. For example, I am having the two systems, ठीक है, that having the pressure, that having the volume, and that having the temperature. This system also P2, V2, and T2 is temperature of this system. This system having the pressure, volume and temperature, and this system also having the pressure, volume and temperature. P1, B1, T1, and here P2, V2, T2. Then if these two systems are said to be in thermal equilibrium, if there is no change in its pressure, no change in its the volume of the both the systems, or we can say that these are said to be in thermal equilibrium if temperature is कांस्टेंट. जब इन दोनों सिस्टम का जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा या टेम्परेचर जो है वो सेम आ जाएगा, then we can say that these two systems are said to be in a thermal equilibrium, meaning the variable like pressure, volume, temperature, number of the particle do not change with time, but the heat may be exchange take place if the wall is conducting here. So one time will come when the temperature of both the mean system are same, then we can say that these two systems are in a thermodynamical equilibrium. Okay, my point. So the next topic is zeroth law of thermodynamics. For example, I am having the two systems. These two systems, that is the system A and this is the system V, and both the system are separated by an insulated bar that is known as the, we can say that, adiabatic wall. And third systems are, ठीक है, that is the system C, that having the pressure, volume and temperature. What the wall is? The wall is here, this wall is conducting wall. ठीक है, my point. So what they are saying to you, these two systems A and B having the adiabatic wall with each other. Clear? So there is a no chance that these two systems will exchange the heat with each other or they will exchange the temperature between each other. Okay, my point. But this system A and system C and system B and system C, there is a chance that they will come in equilibrium. क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो वॉल है ए और सी और वी और सी में, वो वॉल जो है वो कैसी है? कंडक्टिंग वॉल, डायथेर्मिक वॉल है. तो देयर इज ए चांस दैट मीन्स दे विल exchange the temperature with each other, they exchange the heat with each other. So after some time this system A and C having the chance to get the temperature same. Similar way B and C system is also in thermal equilibrium after some time. Why? Because B and C also having the conducting wall, so there is a chance that the heat will flow or the temperature exchange take place between the B and system C. So we can say that there is a chance that means the temperature of the V and temperature of the C will come same, or the temperature of A and temperature of C also will come same. So this system and this system having the chance to come in thermal equilibrium, this system and this system also having the chance to come in thermal equilibrium, then temperature of this and temperature of this, all the system will be same. Then we can say that means not only A and C and B and C are in thermal equilibrium, but A and B also having the chance to come in a thermal equilibrium. Okay, my point. So what you can say that here, if you will see here, the definition of this is the two system A and B which are separately in thermal equilibrium. A and B, the two systems A and B are separately in thermal equilibrium with the third system C, okay, are also in thermal equilibrium with each other. If we will see that here, then the system A and system C are in thermal equilibrium, system B and system C are in thermal equilibrium. So we can say that means
A and B also in a thermal equilibrium. Okay, my point clear? Understood my point? So but we can say that the two system are said to be in thermal equilibrium if they are having the same temperature. तो इन दोनों का टेम्परेचर भी सेम हो सकता है, क्योंकि ये क्या एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के बीच में हीट, ये भी एक्सचेंज कर सकते हैं तो एक दूसरे के बीच में हीट, तो क्या होगा ए और बी भी किस में आ जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे. ओके माय पॉइंट. तो यहाँ से देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ अगर देखा जाए तो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इफ सिस्टम जो ए है, सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, तो क्या बोलेंगे आप कि टेम्परेचर ऑफ ए जो है वो बराबर है टेम्परेचर ऑफ सी के. ठीक है, ओके माय पॉइंट. सिमिलरली देखा जाए तो टेम्परेचर जो है ऑफ बी जो है वो बराबर है टेम्परेचर ऑफ सी के. टेम्परेचर ए का बराबर है टेम्परेचर सी के जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं ये दो, और टेम्परेचर बी का भी है, वो भी है बराबर है टेम्परेचर सी के. तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि टेम्परेचर ए का जो है वो दैट इज आल्सो इक्वल टू टेम्परेचर बी. सो व्हाट यू कैन से दैट, सो टेम्परेचर ऑफ ए इज आल्सो इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी. ठीक है ना. सो वी कैन से दैट मीन्स दिस टू सिस्टम्स आर आल्सो इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम ए एंड वी. पहले कौन से इक्विलिब्रियम में आए, ए और सी, बी और सी, चाहे ये इन दोनों के बीच में एडिवेटिक वॉल है बट दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर बिकॉज विद थर्ड सिस्टम दैट ज्वाइन विद दोज दैट आर आल्सो हैविंग द कनेक्टिंग वॉल. सो दीज आर हैविंग द चांस दैट दे विल गेट द सेम टेम्परेचर. ये भी सेम टेम्परेचर ले सकते हैं तो ये इनका भी टेम्परेचर सेम आ सकता है. तो दिस इज द थर्मल इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टीज. नाउ नेक्स्ट वन इज first law of thermodynamics. So first law of thermodynamics what tell to you, according to this law if some heat is supplied to a system, for example I am having a gas, ठीक है, और मेरे पास उस गैस का क्या है, प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर भी है, नंबर ऑफ मोल्स भी है उस गैस के. इफ आई विल प्रोवाइड द हीट टू इट, हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर मैं हीट इस सिस्टम को दे रहा हूं देन व्हाट विल हैपन, इफ एनी हीट इज सप्लाइड टू ए सिस्टम विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क देन क्वांटिटी ऑफ हीट दैट इज ऑब्जर्व बाय द सिस्टम. अब इसको मैंने हीट दी है तो इससे क्या होगा, जो हमारे गैस मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होंगे, इंटरनल एनर्जी इनकी इंक्रीज होगी. ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो सकती है क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी वाइब्रेशन बढ़ेंगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, गैप भी मॉलिक्यूल के बीच में बढ़ सकता है और गैस क्या हो जाएगी, दैट विल एक्सपेंड. अगर ये गैस एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है, तो क्या हुआ यहाँ से, वर्क डन बाय द गैस टू एक्सपेंड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ डी एक्स. तो उसके कारण क्या हुआ, आपका प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा. ठीक है, ओके माय पॉइंट. तो आपने जो हीट दी है दैट हीट दैट यू प्रोवाइडेड टू द सिस्टम बट दैट विल डू, उसने क्या किया, पहले तो इंटरनल एनर्जी आपने मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज की, मतलब कि इंटरनल एनर्जी मतलब ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस इस इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, इंटरनल एनर्जी बढ़ी और उसके कारण क्या हुआ, कुछ हीट ने क्या किया, गैस को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया. तो वर्क इज डन बाय द गैस, सो दैट इज प्रोवाइडेड बाय हुज, जो आपने यहाँ पर इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड की है, डेल क्यू. तो बट देर सेइंग टू यू द क्वांटिटी ऑफ द हीट दैट इज ऑब्जर्व बाय द सिस्टम विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, इसकी इंटरनल एनर्जी जो इंक्रीज हुई है, एंड द एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, सिस्टम ने एक्सटर्नल वर्क किया किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर. सो दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मीनिंग जो आपने हीट प्रोवाइड की है दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस work done. So this is the first law of thermodynamics. Del Q is equal to del U plus del W. Okay, my point. So this is the first law of thermodynamics, meaning the heat that you are providing to the system that increase its internal energy
and also that heat is doing the work on the surrounding. वर्क कौन कर रहा है? सिस्टम कर रहा है. क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है. वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. तो जो हीट प्रोवाइड की दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन. ओके माय पॉइंट. सो दिस इज गिवन हियर. ओके. सो नेक्स्ट वन इज, इसको समझना है ढंग से. वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस. कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें आइसोथर्मल प्रोसेस में. सो लेट अस कंसीडर ए गैस हैविंग द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ठीक है, हैविंग द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स और n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस कंटेन इन ए सिलेंडर हैविंग वॉल इज कंडक्टिंग. जो वॉल है वो कैसी है? यहाँ पर कंडक्टिंग वॉल है. ओके. एंड प्रोवाइडेड विथ फ्रिक्शनलेस पिस्टन. Piston is frictionless. Okay. Let P be the pressure of the gas. इसका क्या? गैस का प्रेशर क्या है? P है. The work done by the gas when piston move through a small distance dx. अब आपने क्या किया? Let this gas is expand for a small distance dx due to pressure P at any time. सो व्हाट इज द स्मॉल वर्क डन. अब देखो, सबसे पहले जब गैस एक्सपेंड हो रही है तो उसका प्रेशर जो है वो पिस्टन के ऊपर क्या होगा? ज़्यादा होगा. जैसे जैसे गैस एक्सपेंड होती जाएगी वैसे वैसे जो प्रेशर की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी? क्या होती जाएगी? प्रेशर तो इस गैस का है, वॉल्यूम भी है. जैसे जैसे गैस एक्सपेंड होगी वॉल्यूम भी चेंज होगा और इस पिस्टन के ऊपर ड्यू टू प्रेशर जो फोर्स लगेगी दैट इज गोज ऑन चेंजिंग. वो सेम नहीं लगेगी हर टाइम. वो क्या होगी? वेरिएबल फोर्स होगी. सो व्हाट आई हैव टेकन हियर? आई हैव टेकन द n इज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द एन आइडियल गैस containing in a container having the connecting wall provided with the frictional piston. Okay, let P be the pressure of the gas. Then work done to move the means gas. ठीक है. when piston move from the small distance dx is, कितना वर्क डन हुआ? स्मॉल वर्क डन. क्यों? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिए कितना आएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब जो फोर्स लगी है वो किसके ऊपर लगी है? पिस्टन के ऊपर. तो पिस्टन के ऊपर कितना प्रेशर है? P. और इसका लेट द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन इज A. और साथ में क्या हुआ? dx. सो एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट इज, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शाबाश. दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम. तो कितना वॉल्यूम में चेंज आया है? दैट इज PdV. तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस. तो वॉल्यूम ऑफ द गैस. सो दिस इज द वर्क डन, स्मॉल वर्क डन टू एक्सपेंड द गैस थ्रू ए डिस्टेंस dx. ओके. इफ गैस is expand and variables are changed from P1 B1 to P2 B2 ड्यूरिंग कौन सी एक्सपेंशन हो रही है? ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन. तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा आपका? 0 होगा. तो अगर आपके पता है कि यू नो वेरी वेल दैट व्हेन एनी गैस इज कंटेनिंग इन ए कंटेनर देन द एट ए स्मॉल फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx द वर्क डन बाय द गैस इज PdV. स्मॉल वर्क डन वैल्यू यू हैव रिक्वायर्ड द टोटल वर्क डन. तो आप क्या करोगे? इस क्वेश्चन की इंटीग्रेशन कर देंगे. कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करेंगे? PdV. क्या चेंजिंग आ रही है? वॉल्यूम में चेंज आ रहा है dV और टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है. तो आप लोग क्या करोगे? यहाँ से क्या रेंज लगाएंगे? V1 to V2, V1 to V2. ओके माय पॉइंट क्लियर. तो यहाँ से जो है, लेकिन हमारी जो रेंज है मैंने बोला कि प्रेशर इज P ओनली टेकन. तो यहाँ पर जो है वो V1 to V2 ही लो आप लोग. ओके माय पॉइंट. वैसे P1 to P2 भी ले सकते हैं. चलो इसको ले लो, P1 B1 ही ले लो. सो यहाँ से हमारे पास क्या है? इंटीग्रेशन करेंगे W. P इज कॉन्स्टेंट, चेंज इन वॉल्यूम
B1 to V2 and dV. This is okay. Substitute the value of the pressure is equal to RT by B. तो क्या आएगा आपके पास, इंटीग्रेशन आ जाएगी इसकी दोबारा से. आई विल राइट ऑन हियर. कहाँ से आया, आप P को क्या लिख सकते हो, आप RT by B भी लिख सकते हैं, और B1 to V2 and to change in volume. कहाँ से आया RT by B, PB इज इक्वल टू क्या, 1 मोल ऑफ द गैस ले लिया RT, तो आपके पास P की वैल्यू क्या आ जाएगी, RT by B. तो दैट वैल्यू वी हैव टेकन हियर. तो W किसके बराबर आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, RT by B. वी वेयर वी विल टेक इनसाइड dB by B, B1 to V2 change take place. So I have told to you earlier also, the integration of 1 by x into dx किसके बराबर होती है, log EX. So same value 1 by x 1 by b into dv, क्या इंटीग्रेशन आएगी अगर इसकी करोगे आप लोग, तो log EV and the limit is V1 to V2. तो W what will come, RT, substitute upper limit first, log E V2 माइनस लोअर लिमिट, आपको बताया मेथड ये, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. नो बट हैपन, अब यहाँ से क्या है, W इज इक्वल टू क्या आ गया, RT log A माइनस log B, दैट इज इक्वल टू log A बाय B. ये हो जाएगा आपकी वैल्यू. यहाँ से क्या लगाया आपने फार्मूला, log A माइनस log B इज इक्वल टू log ऑफ A बाय B. ठीक है, ओके माय पॉइंट. अब यहाँ से क्या है, आपके पास जो W आ गया वो किसके बराबर आ गया, RT. पुट द वैल्यू ऑफ द log E चेंज इनटू log 10 बिकॉज log इज स्टार्टेड फ्रॉम 10. तो क्या आएगा हमारा यहाँ से 2.303 इंटू log ऑफ 10 इंटू V2 बाय B1. So this is the work done during isothermal expansion. From where I have written this, because log E value is 2.303 over log 10. Because log starts from the 10 only. तो ये वैल्यू हो गई हमारी यहाँ से. और क्या लिख सकते हैं यहाँ से, और W is equal to RT multiply by 2.303 log of 10. You know very well that if प्रोसेस इज आइसोथर्मल है तो P1 इज इक्वल टू व्हाट, P1 B1 इज इक्वल टू P2 V2. तो P1 बाय P2 इज इक्वल टू किसके बराबर आ सकता है, B2 बाय B1. सो इन प्लेस ऑफ दिस आल्सो आई एम एबल टू राइट ऑन P1 बाय P2. सो दिस इज आल्सो द मीन्स वर्क डन, ठीक है, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके माय पॉइंट. सो सबसे पहले मैंने क्या किया, आई हैव टेकन द गैस इन ए कंटेनर हैविंग द प्रेशर, ठीक है, एंड हैविंग द वॉल्यूम. लेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस बी एक्सर्टिंग द प्रेशर इज P ऑन द बॉल ऑफ द सिलेंडर, एंड द मीन पिस्टन हैविंग द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज A, जिसका जो है, और ये जो डिस्प्लेस हुआ दैट इज dx. सो हाउ मच वर्क डन बाय द गैस टू एक्सपेंड इट, दैट इज इक्वल टू dw इज इक्वल टू FdX. F मतलब P इंटू A इंटू dx, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम के बराबर होता है. So this is a small work done by the gas when gas expand through a displacement dx. Now process is isothermal है, so it means that temperature is constant है. So we want to consider that the gas is expand from the volume B1 to V2. तो हमारा जो आएगा work done that is equal to what in isothermal process. So dW is equal to PdV, full integration done. We have taken P outside and changed this in the form of the volume. So we have used the ideal gas equation. PB is equal to RT. So W is equal to RT by B. Change in volume integration B1 to V2. Now B I have taken inside. So formula coming here 1 by x into dx, that is equal to what, log EX. तो 1 by x into dx that is equal to log EV. अब पुट करो ऊपर से वैल्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. Here the formula coming here log A minus log B, that is equal to log A by B. आगे B2 by B1, log E change into log 10, its value 2.303 log 10, log E value substituted here, and also we know that the B2 by B1 is equal to P1 by P2. So this is the work done in isothermal process. Thank you.